الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ایک پادان ہم طے کرنے لگے ہیں، ایک نیا سبق۔ بولیے، کچھ بول رہے کیا؟ ایک نیا سبق کا انٹروڈکشن کر رہا ہوں میں، اس کی تمہید، اس کا پریفیس سنیے۔ یہ سبق جو ہے اس کا نام ہے جملہ اسمیہ۔ غالباً آپ کو اس کے پہلے بھی حافظ صاحب کے ذریعے اور میں بھی بہت بار بتا چکا ہوں۔ عربی میں دو قسم کے جملے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، فعل سے جو شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور اسم سے جو شروع ہوتا ہے، ناؤن سے جو شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اسم یعنی کہ ناؤن سے شروع ہونے والا جملہ اسم۔ اب سوال یہ آتا ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ جب کبھی آپ کو کسی کا وجود بتانا ہے، یعنی کوئی شخص اس سطح زمین پر جو موجود ہے اس کی وضاحت کرنا ہے، اس کو ڈسکرائب کرنا ہے، تو جس شخص کا نام لے کر آپ اس کے متعلق جو بھی بات کرتے ہیں تو وہ جملہ اسمیہ کا اسم ہوگا۔ اب جیسا ہم کہیں گے مظہر الدین ہے ایک مدرس، کیا بتا رہے؟ مظہر سر جو ہے ان کی متعلق ہم بات کریں تو پہلے ان کا نام لینا ضروری ہے۔ مظہر صاحب ہے کوئی ایک مدرس، اب کون سا مدرس نہیں بتا رہے، کوئی ایک مدرس ہے بتا رہے، تو کیا بول رہے ہیں ہم اردو میں؟ محمد مظہر الدین اس سطح زمین پر موجود ہے ایک ٹیچر کی شکل میں، یہ بتانے کے لیے جملہ اسمیہ۔ تو ایک کیا بتائیں گے، ان کا پروفیشن بتائیں، تو پہلا کیا نام لیا ہم نے؟ مظہر الدین۔ پھر اس کے بعد میں جو بولے ہم نے ہے ایک ٹیچر، تو پہلا ٹکڑا جو ہے مظہر الدین اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ بولو مبتدا، جملہ جس کے نام سے شروع ہو رہا ہے، اس کو انگلش میں سبجیکٹ بھی بول سکتے ہیں۔ اب یہ سبجیکٹ چھوڑ کر جو باقی کا حصہ ہے اس کو ہم میسج بولو، اطلاع بولو، خبر بولو، تو عربی زبان میں سے پریڈیکیٹ اس کو خبر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خبر یعنی معلومات۔ مظہر صاحب کی کیا معلومات دی ہم نے؟ مظہر صاحب ہے ایک ٹیچر۔ ٹھیک ہے بچے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ اب ہم بتائیں گے ان کی صفت بھی بتائیں گے، ایک جملے میں صفت بھی ڈالتے ہیں۔ صفت کا مطلب کیا ہے؟ کوالٹی۔ تو بولو مظہر صاحب ہے ایک نیک بندہ۔ مظہر صاحب ہے ایک نیک بندہ، تو کیا بولیں گے؟ مظہر صاحب کے لیے صالحن بول دیں گے، پہلے مدرسن بولے تھے اب صالحن بولے۔ اب ہم بولیں گے مظہر صاحب ہے بڑے محنتی، تو بولیں گے مظہر الدین مجتہدن۔ بولو مشتقین، مجتہدن۔ مستحیل، اجتہاد جہاد، یعنی کہ جس کے اندر کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی عادت ہے اس کو مجتہد بولتے ہیں۔ مجتہد، مجتہد، MUJTAHID، مجتہد۔ مجتہد۔
अब इसी तरह से अगर नेगेटिव बताना है तो बोलेंगे कसलानु, बोलो लेजी, क्या बोलेंगे लेजी। अच्छा 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 अच्छा। अब समझे? मुजतहिद ले और कसला। हाँ, कसलाना, कसलानु बोलो। कसला। तो ये अपोजिट है। मुजतहिद का अपोजिट क्या है भाई? हार्ड वर्किंग का अपोजिट क्या है? लेजी। कभी वर्ड्स पे मत जाइए, मैं खाली बातें बता रहा हूं। तीसरा जुमला बनाएंगे अपन इसमें से, जिसमें एक मुरक्कब डाल देंगे। तो आपने पूछे सर आप मजहर की बात कर रहे इतनी, कहाँ है उन्होंने? तो मैं कहा मजहरुद्दीन है क्लास में। क्या बोला मैंने? मजहरुद्दीन है क्लास में। फिल फसली, क्या बोला मैंने? फी फसली। फी फसली या फिल फसली, खास क्लास में है तो फिल फसली। आम क्लास में कोई तो नकीरा में है तो फी फसलिन हो जाएगा। बात समझ में आई? यस। साहब आप किस को जाओ, आपको समझ में आ रहा? आप मजहरुद्दीन का नाम निकाल देंगे, मजहरुद्दीन के साथ के जगह पे कौन सी मुनफसिल जमीर लगा सकते हैं? मजहरुद्दीन मर्द है ना, क्या लगे? हुआ हुआ, हु नहीं, हु अटैच है, हु अटैच है, हुआ। बोलो हुआ मुस्तहिदुन, हुआ मुदर्रिसुन, हुआ मुजतहिदुन, हुआ कसलानुन, हुआ फिल फसली। क्या करे भाई, हमने प्रॉपर नाउन निकाल कर प्रोनाउन लगा दिए। फिर समझ में आ रहा ना? कुछ भी नहीं है। अपन ना उर्दू बोलेंगे पहले, मालूम क्या? मजहरुद्दीन है एक टीचर, फिर सेकंड टाइम मजहरुद्दीन का नाम लेने की जरूरत है क्या? उनो है एक टीचर, हुआ। ठीक है। अब उनो है मिसबा के वालिद। किसके वालिद है? तो क्या बोलेंगे? इब्नो मिसबाह, बोलो। अच्छा नहीं, देखो मेरे पास सुनो। मजहरुद्दीन साहब की शनाख्त कैसा करेंगे? मिसबा का बाप, बोलो। मिसबा का बाप है क्लास में, कैसा बोलेंगे? है क्लास में। इब्नो, इब्नो। इब्नो कौन है? बेटा। अबू बोले तो अबू बाप, बाप। तो बेटे, तो अपने को बताना है मिसबा का बाप अबू, बोलो। अबू अबू मिसबा, अल नहीं है, मिसबा नाम है। अबू मिसबा मुदर्रिसन। अबू मिसबा मुदर्रिस। समझ में आ रहा है? फिल फसली क्लास में है। तो ऐसे ही अपने एक बार वापस बताएंगे सर? हाँ, आप बोलो मजहरुद्दीन की किताब है टेबल पर, बताओ ना। किताबु बदरुद्दीन अला टेबल। हाँ, अला अलल मक्तबा। अलल मक्तबा। मक्तबी, मक्तबी। अलल मक्तबी। बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं आप लोग, माशाअल्लाह। तो ये जुमले इसमिया की कल हमने बहुत बड़ी प्रैक्टिस करी। कल एक पैराग्राफ लिए थे ना, आप याद आया? क्या था भाई पैराग्राफ? जरा देखिए। हाँ, मैंने बगैर पढ़ा है आपको बता दिया। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कल देखे थे अपन ने, जरा देखेंगे अभी उस वो पूरे जुमला इसमिया है, बगैर बोले मैंने आपको जो है ना पहले पढ़ा दिया। इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे। आप कहाँ गया जी वो? इसमें हाँ भाई, कल पहला लेसन, पहली लाइन थी, ये है मेरा घर, बोलो। ये है मेरा घर। वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, आपको सब आता है। हमने बहुत सारी चीजें आपको पहले पढ़ा दिए, अब खाली फिनिशिंग कर रहे हैं। तो ये जो जुमला दिख रहा है, ये जुमला है कि नहीं? पहले पैसा,
हाजा एक डेफिनेट इसम है, क्यों बोलो, प्रोनाउन है। हर एक प्रोनाउन क्या होता है, डेफिनेट होता है, हो पैदा इसम, और मबनी भी होता है। सही दो याद आए चीजा। तो माजिद साहब इसको राउंड कर देंगे। ये हाजा बोलने के बाद में यहाँ पे है ला सकते हैं आप, क्योंकि ये डेफिनेट है ना, उसके बाद है आएगा। बोलो हाजा, हाजा ये है, बोलो ये है मेरा घर। बैत बैत घर और ई बोलते मेरा अच्छा, इसको पहले अपन अलग लिखेंगे, इसको पहले दो वर्ड का लिखेंगे अपन। हाँ, अगर देखिए मैं क्या कर रहा, आप भी ऐसा देखो। हाजा पहले खाली घर लिखेंगे। बैत तुन बैतुन हाँ, हाजा बैतुन का मतलब कोई एक घर है। यहाँ पर आपको डिवीजन लाइन लगाना पड़ेगी और बोलना पड़ेगा ये मुब्तदा है और ये खबर है भाई। बराबर, बोलो, ये मुब्तदा है और ये खबर है। और मुब्तदा और खबर के बीच में सब लोग बड़ी ध्यान से सुनो, लिख के लो। मुब्तदा और खबर के बीच में अरबी में है लिखना पड़ता। पढ़ो, दिस इंग्लिश में इज हाउस। हाँ, तो ये जुमला इसमें है। अच्छा अच्छा, ओके, आप समझ गए? हाँ समझ गए। ये वजूद में है ना, घर वजूद में है ना, ये है एक घर, किसका घर है मालूम नहीं। यानी सबको समझा? ये बिल्कुल ये क्लियर है कि इसमें से शुरुआत हो उसका मतलब अंदर है। हाँ, और माजिद साहब, और ये कौन है, नकीरा है। बोलो, हाँ ये नकीरा है। नकीरा के सामने क्या लगाते हैं हम, है कोई घर। हाँ शुरू में पढ़े थे, देखो बैतुन बोले तो है कोई घर, और अल बैतु का मतलब क्या लगाई थी हमने, खास घर, हाँ, घर। घर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल बैतु का मतलब है घर, और ये है कोई तो भी एक घर है। कोई तो भी एक घर है। यहां से शुरू करना है, बोलो है कोई एक घर, कोई जिसके अंदर इन्हें है लेता नहीं, कौन, अल वाला है कभी नहीं लेगा। अच्छा अच्छा, इसके बाद है आ सकता। देखो मैंने क्या करा, इसको कर दिया मैंने, ये घर। हाँ ये घर हो गया ये। अब ये घर है, क्या करेंगे अपन, जमीलुन जमीन। तो यहां पर है आएगा, सही डेफिनेट के बाद है आता, याद रखो हमेशा। ग्रेट बॉस, ग्रेट ग्रेट। तो ये मुरक्कब बैठ गया अपना, मुब्तदा बन गया मुरक्कब। हालांकि ये दो लफ्ज दिख रहे हैं, लेकिन इनको बांध कर मुफरत को हमने मुरक्कब बना दिए। इसको बोलते हैं मुरक्कब इशारी। यहां तक समझा आपको? अभी आपको कुछ दिनों में खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप जरा भी टेंशन लो मत, ध्यान नहीं दिए तो भी चलेगा। अब पहले क्या लिखे अपन ने, पहले बोलो, फिर से पढ़ो। हाजा बैतुन, बोलो हाजा बैतुन हाजा बैतुन, हाजा बैतुन। कोई एक घर। हाँ, हाजा का मतलब ये खास बात है, ये डेफिनेट है, इन्हें डेफिनेट है। डेफिनेट होते ही उसके 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 पीछे में क्या आने वाला है, आने वाला है। इंग्लिश में इज आ जाएगा, अरबी में है, तो अरबी में है नहीं है, अरबी में है लिखने का तरीका नहीं है, आपको आपके जेब में से डालना पड़ता। तो ये है, बोलो ये है। क्या है भाई, ये कोई तो भी एक घर, इंग्लिश में बोलना है अ हाउस। दिस इज अ हाउस। हाँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को बैतुन। माशाअल्लाह, बैतुन है ये। तो आप कोई भी ऐसा सुनो, मेरी बात सुनेंगे आप, बड़बड़ नहीं करेंगे। आप कोई नए शहर में है, ऐसा इमेजिन करो, और एक घर दिख रहा आपको, तो आप ऐसा करके बोले हाजा बैतुन, बोलो बराबर, इंग्लिश में बोलो दिस इज द हाउस।
और तुम बोले ये है कोई घर, ये है कोई घर। तो वो सामने जो आदमी था उन्हें बोला, कुछ तो ही बोल रहे मेरे घर के बारे में यार। आया उन्हें, आया आके क्या बोल रहा मालूम, ये मेंटेन कर रहा उन्हें हाजा, और ये लगा रहा, क्या लगा रहा, बैती। ए भाई भाई मेरे मुंह में डालो मत, गंदे चीजा मेरे मुंह में डालो मत, कुछ भी बोलते मत जाओ। ये बई हो गया, आप देखो क्या हो गया ये, बैती। बैठी। हाँ याद है आपको, अटैच प्रोनाउन या लगा देंगे तो माय हाउस बन गया। वो आदमी आगे क्या बोला, अरे किसके घर के बारे में बात कर रहे रे, दिस इज माय हाउस। वो बंदा आके क्या बोला, ये तो मेरा घर है, ये मेरा घर है। हाँ ये है मेरा घर। क्यों, क्या क्या इरादा है तेरा, सही। समझ में आया। तो फिर से रिपीट करो, एक नए शहर में आप है खड़े हुए और घर के सामने अच्छा घर दिख रहा, आप बोले ये है घर, ठीक है। तो वो जो आदमी का घर था उन्हें देख लिया, देख क्या बोला, क्या होना है, ये है मेरा घर। ये यहाँ पे मेरा घर में दो चीजें हैं, घर और मेरा। ये मुत्तसिल जमीर है जो जर्री हालत में मानते हम, और ये इसम है। तो ये हो गया एक यूनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये हो गई एक मुरक्कब। कौन सी मुरक्कब हो गई, मुरक्कब इजाफी। बैती है ना, ये बैत क्या है भाई, मुजाफ है, या कौन है, मुजाफी नहीं है। तो कल हमने ये पढ़े, बता रहे थे हम अपने घर के बारे में, हाजा बैती, ये है मेरा घर। हाँ तो पढ़ो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, दिस इज अ नॉमिनल सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद ए नाउन। बात समझ में आई, ये है जुमले इस्मिया जो शुरू होता है इस्म से, ये लाल वाला इस्म है। और खाली बैतुल लिखते थे तो भी जुमला बन रहा था, ये है घर। और हाजा बैती का मतलब ये है मेरा घर। तो पहला हिस्सा हम सीख चुके हैं, हाजा का मतलब इशारे से करीब की चीज को मुज़क्कर को बताने के लिए, हाजा बैती। तो ये बैती का मतलब है, ये दोनों मिलकर एक मुरक्कब है, मुरक्कब नाकिस है। बैती खाली कोई मेरा घर मेरा घर मेरा घर बोलते कुछ समझता नहीं, लेकिन ये है मेरा घर बोलते जुमला बन गया। तो अरबी का तरीका ये है कि जब ऐसा डेफिनेट के बाद में इंडेफिनेट आता, बोलो डेफिनेट के बाद इंडेफिनेट आता है, तो इसके बीच में क्या लगता है, है। तो पहला रूल जरा जरा सब लोग लिखो मत, दिमाग में लिखो, लिखो मत दिमाग में लिखो। मैं इसका ई निकाल देता हूं, खाली सादा लिखता हूं, हाजा भाई। तो ये इंडेफिनेट नकीरा है और ये मारिफा है। तो मारिफा के पीछे जब नकीरा आता है तो जुमला इस्मिया बनता है, और दोनों के बीच में है हमें लगाना पड़ता है। अरबी में है नाम की चीज नहीं है। अब इसी जुमले को कंटिन्यू करना, ये है मेरा घर, इसके अंदर इजाफा क्या है, मुरक्कब इजाफी है, इसमें बैतुन जो है मुजाफ है और या जो है मुजाफ इलैही है। यहाँ पढ़ो मुजाफ इलैही पॉसेसिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मिलके कल हमने देखे, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, कल के क्लास का बता रहा हूं खुलासा। अब इसकी थ्योरी भी पढ़ाना शुरू नहीं करा मैं, कल क्या पढ़े वो दिखाना चाह रहा हूं कि आपने ऑलरेडी जुमला इसमें पढ़ ली। आप बोल रहे तेरा घर कहाँ है रे, आदमी को बोले, तू बोल रहा ना ये है मेरा घर, कहाँ है, बोलो वेयर इज योर हाउस। दादागिरी कर रहा था तो उसने बोला मेरा घर, बोलो मेरा घर। मेरा घर बैती। मेरा घर है मस्जिद के सामने। नॉर्मल मस्जिद है। के सामने। तो यहाँ पे कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल हुआ, अमामा का मतलब है जर, और ये मस्जिदी क्या है, इस्म मजरूर। जरूर।
ये भी जुमला इसलिए है भाई, माशाल्लाह। मैं आज खाली इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अब देखो अगली बात क्या बोला, अरे तेरा घर कैसा है रे, हम पूछे वो शान मार रहा था भाई, तू तेरा घर कैसा है, हाउस या हाउस कैसा है, तूने सिफत लाया घर की। बोलो मेरा घर है खूबसूरत, मेरा घर जमील आजा बाजा कुछ भी नहीं, बैठी जमील जमील, मेरा घर है खूबसूरत। खूबसूरत। आया समझ में? इंग्लिश पढ़ो, माई होम इज, माय होम इज ब्यूटीफुल। तो अपन बोले अभी घर कोई खूबसूरत रहता क्या नहीं है रे, तूने बोला तुमको क्या मालूम, अब उन्हें बोलता क्यों खूबसूरत है, फीही उसमें है, हदीक़तुन सगीरतुन, दोनों में डिंग डिंग है, डिंग डिंग, हदीक़तुन उसमें है एक छोटा बगीचा, समझे क्या? तो ये और एक मुरक्कब ऐड हो गया इसके अंदर। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, बैठी मेरा घर है खूबसूरत, उसमें है एक छोटा बगीचा। मेरा घर है खूबसूरत, उसमें है छोटा घर। बगीचा। बगीचा बगीचा घर में रहता, बगीचा रहता ये तो। हाँ, तो इसके अंदर कौन कौन है, किसका किसका नाम क्या है, नेम प्लेटा लगाएंगे अपन। हाँ, ये जो नेम प्लेट है ये हो गया मुबतदा, बोलो सब लोग, क्योंकि ये एक नाउन है, और ये है खबर, बोलो न्यूज, उसकी न्यूज है, मेरा घर कैसा है, ब्यूटीफुल है। और ये है साहब एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मुताल्लिक़ खबर, बोलो मुताल्लिक़ खबर। खबर क्या है, जमीलुन, जमीलुन कैसा हमारे, फी, हाँ फी ही उसमें है खूबसूरत छोटा बगीचा। छोटा बगीचा। अब कुछ समझ में आने लगा, आपको धीरे धीरे आएगा। जी सर। अभी अपन पढ़ना शुरू नहीं करें, अभी ट्रेलर चल रही है। हाँ, अब यहाँ पे हाजा का हाजी ही हो गया। ओह, हाजी क्यों भाई, वो जो कमरा है ना, उर्दू में कमरे को अपन मैस्कुलाइन समझते, मुच्छी वाला। अरब बोलता नहीं, मुच्छी वाला नहीं हो, साड़ी वाला है। कमरा कौन है, मुअन्नस, फीमेल। क्यों फीमेल है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हाजी गुरफती, ता दिख रहा है, ता दिख रहा ना, गोल ता की बजाय खुला ता। बोलो, तो फीमेल की तरफ हाथ करके बोलो हाजी ही, बोलो हाजी कोई लड़की का नाम बोलो हाजी ही, लड़की का नाम बोलो ज़ैनबु, आमिनतु, खदीजतु। किसको लगाएंगे हाजी, बोलो फीमेल को। तो यहाँ पर नजदीक खड़े हम कमरे के, उन्हें खड़ा है और बता रहा ये है मेरा कमरा। हाँ, तो ये जुमला इसमें है, मुब्तदा कौन है, हाजी है, गुरफती कौन है, खबर। अब उन्हें इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना दो, किसके बारे में, खबर के बारे में। ये कौन है, खबर है, बोलो खबर है, खबर खबर खबर, मुब्तदा खबर, मुब्तदा इज फॉलोड बाय खबर, बोलो मुब्तदा इज फॉलोड बाय खबर। जुमला इसमें में क्या होता है, मुब्तदा के पीछे खबर आती है और उसके पीछे एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट खबर आती है। तो देखो गुरफती है ना, ये गुरफती बोलते तो कमरा मेरा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हा है कि हु है, हा किसके लिए आता है, हो, हुमा, हम, हा, अटैच प्रोनाउन मुअन्नस का क्या आता है, हा। हाँ, तो यह है देखो, फीहा, ये फीमेल कमरे में, फीहा नाफिज़तुन कबीरतुन, उसमें है बड़ी खिड़की। तो फिर पूरा पढ़ेंगे, बोलो हाजी क्या है, मुब्तदा, बोलो हाजी क्या है, हाजी मुब्तदा, गुरफती क्या है, खबर, मालूमात उसकी, और मालूमात के मुताल्लिक ज्यादा मालूमात दे रहे तो उसको क्या बोलते हैं, मुताल्लिक है खबर। खबर। हाँ, तो तीन चीजें आइडियल जुमला इस्मिया में लगते हैं। बोलो आइडियल जुमला इस्मिया में पहला कौन आना,
मुब्तदा, मुब्तदा, दूसरा खबर, खबर, तीसरा मुताल्लिक़ है खबर, मुताल्लिक़ है मुताल्लिक़ खबर, मुताल्लिक़ बोलते हैं खबर, किसी मुताल्लिक़ खबर, रिलेटेड, एडिशनल खबर के बारे में, रिलेटेड तो खबर और रिलेटेड इंफॉर्मेशन। खबर, करेक्ट। तो मुताल्लिक़ खबर का मतलब है एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड अबाउट खबर। यही वो करती थी, हाँ। अब आप ऐसी बात करते ना, उर्दू में बात करते ना, ये है मेरा कमरा, बोलो, ये है मेरा शान मारो, मेरा शान मारो, मेरे कमरे में है एक बड़ी खिड़की। मेरे कमरे में है बड़ी खिड़की। खिड़की। हालांकि इसका जुमला खत्म हो गया, हाजी ही गुरफती, ये है मेरा कमरा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा मालूमात दे रहे, फीहा नाफिज़तुन कबीरतुन, उसमें है एक बड़ी खिड़की। चलो आगे देखिए, वाह 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 बोले तो हर पे अद्भुत एंड और मिरवाहतुन जमीलतुन, ये जुमले को अटैच हो रहा हो, ये फीहा के बाद नहीं, यहाँ से आओ, बोलो ये है मेरा कमरा, उसमें है बड़ी खिड़की और उसमें है एक खूबसूरत पंखा। पंखा, तो ये जुमला यहाँ से शुरू हो रहा, ये है मुब्तदा, ये है खबर, ये है मुताल्लिक़ खबर, ये भी है मुताल्लिक़ खबर। अब आ जाओ हाजा, फिर हाजा हो गया, हाजा क्यों है भाई, मर्द चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुज़क्कर, ये है मेरा बिस्तरा, हाजा सरीरी, ई लगाए ना, मेरा बेड, हाँ अच्छा जरा यहाँ पे अपन लगाइए, शरीरी यानी मेरा बेड, शरीरू हो एक मर्द का बेड, शरीरूहा एक फीमेल का बेड, शरीरूना हमारा बेड। अच्छा उसमें और क्या है जी, और ये है मेरी मेज, टेबल, मेरी बोलते या मेज, ये है मेरी टेबल। अब देखो मक्तबी मेरी टेबल, मक्तबुहु उसकी टेबल, मक्तबुहा एक मोनस की टेबल, मक्तबुना हमारी टेबल, साती मेरी घड़ी, सातुहु एक मर्द की घड़ी, सातुहा एक औरत की घड़ी, सातुना हमारी घड़ी, खलमी मेरी कलम, खलमुहु एक गायब की कलम, खलमुहा गायब औरत की कलम, खलमुना हमारी कलम, किताबी मेरी किताब, किताबुहु एक गायब मर्द की किताब, किताबुहा उस एक औरत की, किताबुना। समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसीलिए आपको प्रोनाउंस बहुत सिखाया मैंने, ताकि आपकी गलती कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे भाई, मुदाफ मुदाफ इलैहि, मुदाफ मुदाफ इलैहि, मुदाफ मुदाफ इलैहि, मुदाफ सब मुदाफ मुदाफ इलैहि, और ये तमाम लाल वाले जर्री हालत में है, क्योंकि मुहल्लन जर्री है उन्होंने। किसी को सवाल है क्या? कोई सवाल? चलो माशा माशा। चलो अगला सेंटेंस क्या देखे थे अपन, हकीबती, हकीबती मतलब बैग, ई लगा तो मेरी बैग, मुजाफ मुजाफ इलैहि। अब ये आया देखो हर जगह, तहतल मक्तबी अंडर द टेबल, माय बैग इज अंडर द टेबल, ये भी जुमला इसलिए आया, ये तो हकीबती नाउन है, आया। तो चलो आगे चलेंगे, नाफिज़तु गुरफत, ये क्या है भाई, नाफिज़तु को जरा गौर से देखो, देखो इसके बाद अल है क्या, नहीं है। अखब क्या हुआ इसमें सर? मैं जितना पूछा उसका जवाब देना, मेरे मुंह में निवाला डालना नहीं। बोलो अल है क्या, नहीं है। नहीं सर, तनवीन है क्या, नहीं है। इसलिए अखब किया हुआ मारिफा है। और ये जो आ रहा गुरफती, ये जो है डबल मुजाफ मुजाफ इलैहि, देखो नाफिज़तु गुरफती, नाफिज़तु और गुरफती का मतलब क्या हो गया, कमरे की, बोलो क्या है, कमरे की खिड़की, किसकी कमरे के, तो याद लगा दिए, तो ये मुजाफ हो रहा। सुनो जरा गौर से सुनो, जरा गड़बड़ ना करो, ये इसको बोलते हैं डब्बे में डब्बा, तो ये नाफिज़तु को यहां रखो, गुरफती को यहां रखो, और या को यहां रखो,
तो ये हो गया मुजाफ, ये हो गया मुजाफ इलैहि। फिर ये बैठ के इन्हें बन गया मुजाफ और ये बन गया मुजाफ इलैहि। बोलो। अच्छा अच्छा, मुजाफ 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 इलैहि। हाँ वह बोलो, पहले फिर से बोलो। मुजाफ, ये मुजाफ क्या है? मुजाफ, और ये काला है मुजाफ इलैहि। और फिर ये मुजाफ बदला काला। पहली बार इन्हें मुजाफ इलैहि है माजिद, हो सेकेंड टाइम ये रिश्ते में आ रहा तो मुजाफ इन्हें मुजाफ इलैहि। बराबर। तो बोलो मुजाफ मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि। फिर मुजाफ इलैहि। पढ़ो, फिर से पढ़ो, अच्छा लिखता हूं जरा गौर से। ये बहुत अहम है, समझने की जरूरत है। ये बड़ा करा मैंने, और ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मुदाफ मुदाफ इलैहि। अब यहाँ पे जो ये काला दिख रहा, मैं इसको राउंड अप कर रहा हूं, ये है मुजाफ। क्या है बोलो? मुदाफ। मुजाफ और इसके लिए मुजाफ इलैहि बन रहा है ये काले वाला, क्योंकि नहीं इसके नीचे जर है। मुजाफ बोलता मैंने, मुजाफ इलैहि के नीचे जर होना, तो ये हो गया इन्हें मुजाफ इलैहि। इलैहि। अब इन्हें सेकंड राउंड में क्या हो रहा है, यहां पर ये दो सर्कल कंबाइन हो रहे। अब इन्हें बन जा रहा फिर से मुजाफ, और इन्हें बन जा रहा मुजाफ इलैहि। हाँ, ये रिश्ता एक है, ये रिश्ता एक है। माजिद समझा क्या? यस। ए बी, फिर बी सी, बी कॉमन है, बराबर है। ये है ए, ये है बी, और ये सी है। ए बी का एक रिश्ता बन रहा, ये खत्म हो रहा। फिर बी से सी का रिश्ता खत्म हो रहा है, डबल रिश्ता है यहाँ पे। इसलिए बोलेंगे इसको, देखो अरबी में मैं बोलता हूँ, समझिए कुछ। अब अरबी में बोलता मैं, इसको याद रखो। बोलो मुदाफ, मुदाफ मुजाफ वो मुदाफ इलैहि, मुजाफ वो मुदाफ इलैहि। वह हुआ, और उन्हें है, और वह हुआ बोलो, वो हुआ मुदाफ, मुदाफ वो मुदाफ इलैहि। वो मुदाफ इलैहि। उर्दू में बोल रहा है, ये है मुजाफ और ये है मुजाफ इलैहि, और इन्हें है मुजाफ, फिर अब इन्हें है मुजाफ इलैहि। अरबी बोलते हैं ऐसा, मुजाफ व मुजाफ इलैहि, वह हुआ मुजाफ व मुजाफ इलैहि। अच्छा अच्छा, वो हुआ मुदाफ, वो हुआ मुदाफ। वह हुआ बोलता और, हुआ बोलता उन्हें, है मुजाफ और मुजाफ इलैहि। तो ये तमाम लोग मिलकर एक यूनिट बन रहा है, इसको बोलते हैं हम मुरक्कब इजाफी, डबल वाला। और इसके बाद है लगाओ, नाफिज़तु गुरफती, मेरे कमरे की खिड़की। बोलो मेरे कमरे की खिड़की। कमरे की खिड़की यहाँ पे लगाओ है बंद, या कमरे की खिड़की है बंद, खुली खुली खुली। ये देखो कहां से बना, जरा देखेंगे इसको। हम कहां से बना रहे इसको देखेंगे। अपन ने सीखे थे फतहा, याद है आपको फतहा? हाँ पता है। फतहा है नहीं खोला, यफ्तहु खोलता है, उसको मफ लगाए तो खुली हुई चीज बन जाती है। मफ्तहु, फतहा, देख रहे हैं? जी हाँ बोलो, ये बोलो, या को पढ़ो मेरे, बोलो मेरे मेरे कमरे 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 की खिड़की। की खिड़की है खुली। हाँ, तो कमरे अरबी की में की नहीं है, अरबी में की नहीं है, तो आपको तलफ्फुज से पढ़ना है। या तो बोलो मेरे कमरे की खिड़की है खुली हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब मुझे बताओ जुमला किससे शुरू हो रहा है? नाफिज़तु से शुरू हो रहा है। और नाफिज़तु किसका है? कमरे से शुरू हो रहा है। कमरा यहाँ पे अपना न्यूक्लियस है। खिड़की किसकी? कमरे की। और कमरा किसका? मेरा। तो गुरफतु इस्म है, इसलिए जुमला इस्मिया। अच्छा, और आगे से अब देखो, नाफिज़ तो गुरफतु हो गया। ये फतह, बोलो फतह बोले तो खोला उसने, तो इससे बनाया गया मफ्तूहतुन। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको? जी सर। चलिए अपन वापस चलेंगे अपने लेसन पर। जुमला इस्मिया अब हम ABCD से शुरू सीख रहे हैं। सेंटेंस, जुमला इस्मिया। देखो सेंटेंस क्या होता है? A group of words that makes a complete sense। ये जुमला है और इसको बोलते हैं काम।
इसका नाम है जुमला इस्मिया। बोलो सब लोग। क्या नाम है? जुमला इस्मिया। इस्मिया। और इसकी शुरुआत होती मुब्तदा से। इसकी शुरुआत होती मुब्तदा से। से हाँ, अब मुब्तदा के बाद में आपको लगाना है इज। हाँ, मुब्तदा के बाद लगाना है। लगाना है इस। समझ में आ गया? बोलो मुब्तदा है खबर। बोलो मुब्तदा है खबर। और ये ज्यादा मालूमात, मजीद मालूमात, डिटेल्स है। 3 चीजों की ट्रेन है हमारी, मुब्तदा, खबर, मुत्तल्लिक़ बिल खबर। अच्छा, मुत्तल्लिक़ बिल खबर की बोले तो बनो। बिल 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 समझ गया मैं। तो रिपीट करो, 5 बार रिपीट करो। पहला कौन आ रहा? मुब्तदा खबर। मुब्तदा मुत्तल्लिक़ बिल खबर। मुब्तदा की है खबर मुत्तल्लिक़ बिल खबर। बोलो मुब्तदा खबर मुत्तल्लिक़ बिल खबर। मुब्तदा अच्छा खबर। मेरे साथ बोलिए। मुब्तदा के बाद है डालेंगे मुब्तदा है खबर। और ये उसके बारे में ज्यादा मालूमात, डिटेल इंफॉर्मेशन। मुत्तल्लिक़ बिल खबर। दैट्स ऑल। मुब्तदा है खबर मुत्तल्लिक़ बिल खबर। बस पूरे कुरान में ये 30% है। अरे बाप, कितना ये? 50%। अगर आपको गलती नहीं करनी है तो मुब्तदा के बाद में है डालने की आदत डाल लो। ठीक बात। अगर है नहीं डालेंगे, अड़मुट बना करेंगे, ये टीचर है, हमारी आदत है उर्दू बोलने में, ये टीचर है, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा ये है टीचर। ये है। आप जिद करेंगे, आपकी गलती शुरू हो जाती है। बस आया समझ में? Yes. चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नए लेसन में घुस रहे हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉमिनल सेंटेंस। बोलो नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल का मतलब नाउन से शुरू होने वाला। नॉमिनल का मतलब नाउन से शुरू होने वाला। That's all boy, that's all। अब इधर का देखने का हाल इतना टिकड़ा। हाँ, सेंटेंस का मतलब उन्हें कंप्लीट मायने देता, कंप्लीट में लिख देने वाला। तो उसको मुरक्कबे ताम कहते हैं। मुरक्कबे ताम के बराबर। अब अंग्रेजी में देख लेंगे वो, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। वो एक होशियार लड़का है। वो है, अभी जल्दी करा देखते हैं, अभी कर देंगे। वो है एक होशियार लड़का। नहीं, कोई होशियार लड़का। वो है कोई होशियार लड़का। हाँ, ये एन दिख रहा है ना, नकीरा है। कोई होशियार लड़का। अब माजिद इसको अपन अरबी बना देंगे, अभी चाह जाता तुमको, ये ही लाओ इधर, तो ये हो गया हुआ। हुआ। और बॉय क्या हो गई? वलदुन। वल्दुन। अच्छा चलो वलदुन, ठीक है, माशाल्लाह, करेक्ट। हुआ वल्दुन। वलदुन नहीं माजिद, वलदुन है वो। वलदु। वलदुन। वलदुन हुआ और ये क्या हो वलदुन। जाएगा? ज़कीयुन। हुआ वलदुन ज़कीयुन। वो है एक लड़का होशियार। हाँ, तो अब पढ़ेंगे कैसा? अपने को अभी भी ये जो पढ़ते हैं ना सिफत मौसूफ, तो इसको वो है एक होशियार लड़का। वो है एक होशियार लड़का। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। आपको बताने को आया कि नहीं? वो है एक होशियार लड़का। अब ये बताओ, दिस बता रहे, ये दिस मर्द के लिए है कि औरत के लिए? किताब तो मर्द है, तो बना हाजा। हाजा किताबुन। किताबुन। हाँ, अब इसके मायने पढ़ो बाजी। ये है है कोई एक किताब। माशाअल्लाह, इसके अंदर ये सेगमेंट करना आया समझ में? बिल्कुल। अच्छा, अब जरा मुझे देखना है आप में से सबसे होशियार कौन है। ये मुरक्कब इजाफी आ रहा है। अल्लाह का घर है मक्का में, बताओ। बैतुल्लाही। मक्कतु। बैतुल्लाही मक्कतु। मक्कती भी बोले तो चलेगा। फिलहाल फी मक्कती आ गया। बैतुल्लाही बोलो, अल्लाह का घर, मुजाफ मुजाफ भी नहीं। बैतुल्लाही फी मक्कती।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बोलो, एक मर्द है, एक खास घर में, कौन बनाएगा? He is in the house, He is ना? in the house। हाँ हाँ। बताओ। हुआ हुआ फिल बैती। बैती फिल बैती हाँ, द है यहाँ पे। जी फिल बैती फिल बैती हाँ पढ़ो, हुआ हुआ फिल बैती। बैती है वो है उन्हें है घर में। घर में। घर उन्हें है घर में। हुआ कोई फिल उन्हें है घर में। ठीक है, समझ में आया थोड़ा इंट्रोडक्शन? अच्छा, यहाँ पे बड़ा हुआ ये क्या है भाई? ये जुमला है क्या, बताओ मेरे को। मुरक्कब बोलो वलदुन ज़कियुन। वलदुन वलदुन ज़कियुन ज़कियुन। ये फ्रेज है, ये फ्रेज है। ये फ्रेज देगा, देखो ये फ्रेज देगा, देखो इस बुक हाँ फ्रेज है, फ्रेज बन फ्रेज गया। है। मुरक्कब सारी हाज़ल, ये क्या है? हाज़ल किताबु है ये। हाज़ल किताब। हाज़ा के बाद हल आ गया और किताबु आ गया, तो है गायब हो गया इसका। ये इसके अंदर का है टूट गया, क्यों मालूम? ये भी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है, दो डेफिनेट। हाँ बोले थे आपने, अल नहीं आना बाद में। यस बॉस। अब बोलो, घर में कौन बनाएगा? हाउस ऑफ अल्लाह ना। दीवाने सबके सब दीवाने। इन बोले तो फी, और खास कर बोले तो फी बैतुल्लाह बिल बैती। अरे इधर देखना नहीं है इसको, इतना तीसरे नंबर का अच्छा। हाउस ऑफ अल्लाह इन द हाउस, हम वो तीसरे का बोल रहे थे। हाँ, फिल बैती बराबर। बिल बैती आ गया समझ में? तो ये yes, चारों भी ये जो चारों चीजें लिखी है, थर्ड वन हो गया बैतुल्लाही। हाँ, बराबर। तो ये हो गया वलदुन ज़कियुन। इसके मीनिंग कुछ भी नहीं है, ये भी जो है नाफिस है, ये फ्रेज है। हाज़ल किताबु भी एक फ्रेज है, फ्रेज है। बैतुल्लाही भी फ्रेज है, फिल बैती भी फ्रेज है। ये तमाम सेंटेंस नहीं, ये चारों भी, ये चारों सेंटेंस, ये चारों क्या है? फ्रैगमेंट्स है, फ्रेजेस है। दे डजंट कन्वे कंप्लीट मीनिंग, दे आर मुरक्कब। समझ में आया? यस। चलो अब आगे हम पहला उसूल लिख लो। जब भी हम जुमला इस्मिया बनाएंगे, उसका पहला टुकड़ा होता है मुब्तदा, सेकंड टुकड़ा होता है खबर। कम से कम इतना चाहिए, मिनिमम, बेर मिनिमम इतना चाहिए। देखो जुमला इस्मिया कैसे तैयार होगा? मुब्तदा आएंगी, उसके पीछे खबर आएंगी। बोलो, मुब्तदा आएंगे, उसके पीछे खबर आएंगी। ओके। अच्छा, मुब्तदा कैसा होना माजिद साहब? नकीरा होना कि मारिफा होना? मारिफा। मारिफा। और खबर कैसी होना माजिद साहब? नकीरा होना। तो बोलो मारिफा फॉलोड बाई नकीरा। बोलो मारिफा फॉलोड बाई नकीरा इस जुमला इस्मिया। अच्छा, जुमला इस्मिया इज मारिफा फॉलोड बाय नकीरा। खलास। अब जरा इसको अपन देखेंगे और भी इसका ऑपरेशन करेंगे। यहां पे क्या जुमला दिख रहा है भाई? देखो, द बॉय इज पायस। रुको। द बॉय मारिफा की नकीरा है? मारिफा। और पायस नकीरा है? नकीरा है। तो उसने बीच में इज आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। बॉय कौन हो गया? मुब्तदा। बराबर। और पायस कौन होगा? खबर। ये बनाएंगे अपन। बोलो, मुब्तदा पहले लिखेंगे, अल वलदु, अल के साथ है, अल आया है, मुब्तदा आया है। शाबाश। ये द बॉय, यहाँ पे पैदा करेंगे इज। सालिहुन पायस। The boy is pious. The boy is pious. यस सर, सही। अच्छा, अब जरा सा सेकंड फेज में चल रहे हैं अपन। पहला क्या बोलो? पहला रूल क्या है? सब लोग बोलो, दोहराओ, पहले भी बोलो। जुमला इस्मिया बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है? पहला इसम, बोलो
पहला इसम फिर मारिफा खबर, मारिफा देख पहला इसम मारिफा पहला इसम मारिफा, मारिफा दूसरा इसम नकीरा इसम नकीरा नकीरा, पहले इसम को क्या बोलते हैं मुब्तदा दूसरे को क्या बोलते हैं खबर तो खबर अपना रूल फिर क्या बना अपना रूल क्या खबर फिर बना मुब्तदा। क्या बोल रहा कि दीवाना हो गया अबे मुब्तदा पहले बाद में खबर हाँ, उसके बाद और एक्स्ट्रा था तो मुताल्लिक बिल खबर बिल खबर हाँ जरा माजी जरा 2 मिनट सब्र रख 2 मिनट सब्र तो हमने खुलासा करना है मुब्तदा आता है बेखबर आती है कम से कम इतना है तो जुमला बन जाता और भी बहुत मालूमात देने वाला है जुमला होना तो उसको मुताल्लिक बिल खबर लगाते नहीं तो नहीं लगाते यस है ना हाँ तो ये पहला कौन है हरे वाला मुब्तदा और मुब्तदा कैसा है मारिफा मारिफा और खबर कैसी है नकीरा, नकीरा तो अपना अपना फार्मूला क्या बना मारिफा के बाद नकीरा आए तो जुमला इसमिया बनता बराबर, मारिफा के बोलो। बाद मारिफा के बाद मारिफा नकीरा आए तो जुमला इसमें नकीरा आए तो जुमला इस्फिया बनता समझ में आया सबको जी सर आपको उर्दू में लिखना है तो ये लिख देता मैं मारिफा के बाद इस्म के बाद नकीरा इस्माए तो जुमला जुमला ये हो जाता मर जाता जुमला इसमिया बनता रे वो जुमला इसमें बन मारिफा इस्म के बाद नकीरा इस्म आ गया जुमला ये क्या बनता है जुमला इसको अपने जुमला इसमिया ये पहला रूल है हेलो नकीरा ये तो पढ़ने का रूल है ना अब आयरब का रूल देखने का है हाँ कौन सा रूल देखने का है समझने का बोलो समझने का रूल समझने तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा पेज दिख रहा बोलो यहाँ पेज दिख रहा और पेज तलफ्फुज करके देख रहे हैं अल वाला दो 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 आवाज आ रही पेश की आवाज आ रही है ना दो है इसलिए रफा है भाई साहब रफा है और कैसा रफा है बाय वर्च्यू ऑफ प्रोनाउंसिएशन बोलो प्रोनाउंसिएशन के बलबूते पर हम बोल रहे पेश आया आखिरी लेटर पे वाला दू अल वाला दू पहले क्या बोले मारिफा है मारिफा है और रफा है की वजह से अब यहाँ पे देखो ये पहले क्या बोलेंगे इसके बारे में इन्हें मारिफा है अब अपन ऐराब सीख रहे दूसरा क्या है हालत रफा में है अब सालिहुन को देखो भाई सालिहुन क्या है भाई नकीरा है बोलो नकीरा है और पेश वाला है ये भी रफा ये भी रफा कैसा पैसा दे तलफुज करके प्रोनाउंसिएशन सालिहुन हुन हुन ये अलवलदु सालिहुन हाँ तो यहाँ पे इनकी अपन डिंग की मैचिंग करेंगे दोनों की स्टेटस रफा है बोलो दोनों का स्टेटस रफा हाँ पहले वाले की कैपेसिटी क्या है डेफिनेट है अल है दूसरे के पास अल नहीं है इनडेफिनेट है ये एक चेंज आ जाता है इसमें क्या चेंज आता बोलो डेफिनेट इज फॉलोड बाय इनडेफिनेट अच्छा डेफिनेट इज फॉलोड बाय इनडेफिनेट अब लड़का सालिहुन है तो अब लड़का है तो उसकी सिफत लड़के की सिफत होना कि लड़की की होना उसको लड़के की सिफत होना लड़के का लड़के तो यहाँ पे दोनों का जेंडर सेम है दोनों का नंबर सेम है दोनों का एराब सेम है खाली फर्क पड़ रहा है डी में डी चेंजिंग यहाँ पे डी क्या है मारिफा यहाँ क्या है नकीरा डेफिनेट है इनडेफिनेट लेकिन एराब बोथ हर सेम एराब पेश
तेरा खून है मुज़क्कर पेज। मुज़क्कर। बहुत बहुत बड़बड़ करो इसको, देखो बहुत बड़बड़ करो, बहुत से बातें करो, बहुत मजे लो, हो गया, इसका काम ही खत्म हो गया। बराबर। जरा फिर से रिपीट करके बोलो भाई, मुब्तदा में क्या क्या मिलना माजिद, बोलो। मुब्तदा में स्टेटस रफा है, दोनों नहीं का नहीं, स्टेटस रफा है। पहला बोलो, मुब्तदा डेफिनेट होना। डेफिनेट है। हाँ, फिर उसके बाद में रफा होना। डेफिनेट होना, रफा होना है। अब ये माहिर हो सकता, जमा हो सकता, मुज़क्कर। कुछ बाकी कुछ भी हो सकता हो, है ना, दो भी आ सकते ना भाई। सही है। हाँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें दो ही है, डेफिनेट होना, रफा होना, बोलो। डेफिनेट होना, रफा होना। अब इसके तरफ आओ, इंडेफिनेट होना और रफा होना। इंडेफिनेट डेफिनेट होना, बाकी इसका जेंडर सेम ही रहता, इसका नंबर सेम ही रहता, बाकी पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दो ही चीज याद रखने का इसमें, डेफिनेट इंडेफिनेट, और रफा दिखा रे दिखा, आपने बोल देना अरे साहब ये तो जुमला इसमिया है। अच्छा चलो इसके साथ खेलेंगे अपन। हाँ हेलो, अब मैं क्या करने लगा हूं मालूम क्या, खबर को भी मैं डेफिनेट बनाने के चक्कर में हूं। खबर को क्या करेंगे, डेफिनेट हल लगाएंगे और सालेहू करेंगे। आप सना बोलो बोलो, अल वलदुल सालेहू। तो अब जरा रुको 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 रुको, ये दोनों डेफिनेट हो गए, दोनों रफा हो गए, दोनों वाहिद हो गए, दोनों मुज़क्कर हो गए, तो ये बन गया मौसूफ सिफत, फ्रेज बन गई, मुरक्कब बन गया। बराबर। इसके मायने क्या होंगे बोलो, नेक लड़का। एक लड़का ईद हट गया उसमें से। हाँ, तो अगर इसके अंदर से अगर अपन ने इसका अल निकाल दिए तो बन जाता लड़का है नेक। एक लड़का है नेक, और हाँ, लगाते के साथ ही नेक लड़का। आया, मजा आया कि नहीं? यस, इंटरेस्टिंग। और ये हफ्ता भर सिखाने वाले भाई, फिक्र मत करो, आपको पूरा दिमाग में स्क्रू ड्राइवर लेके मैं फिट करने वाला हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग का फार्मूला कैसा मैन्युफैक्चरिंग करते, देखो भाई, एक इसम लेते, दूसरा इसम लेते, पहले इसम का नाम मुब्तदा, दूसरे इसम का नाम खबर। पहला इसम होना डेफिनेट, दूसरा होना इनडेफिनेट, पहला होना रफा, दूसरा होना रफा। इसको जुमले देख, 1 2 3 बोलो। 1 2 3। 1 क्या है, दोनों, ये डेफिनेट डेफिनेट रफा रफा। इनडेफिनेट, लेकिन दोनों का स्टेटस सेम होना, दोनों का जेंडर सेम होना, दोनों का नंबर सेम होना। एक तब्दीली है खाली, एक तफावत है, डेफिनेट इंडेफिनेट, बाकी सारे सेम। बाकी सब चेंज, डेफिनेट इंडेफिनेट छोड़ के बाकी। ये आप अपना पेन निकालेंगे और लिखेंगे, अभी लिखेंगे थोड़ा बड़ा करो। यस। हेलो बड़ा, ये है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें एक्सेप्शन भी लिखे बाजू, पहला रूल 100% है, दूसरा रूल 99% है, तीसरा रूल भी 99.99%। डेफिनेट इंडेफिनेट रफा। बाकी जेंडर नंबर तो सेम ही रहते, जेंडर सेम है, बहुत मस्त। मुब्तदा खबर, द सेम जेंडर एंड द नंबर। और बहुत सारी बातें करो, बहुत सारी बातें पूछो, खामोश मत रहो, क्योंकि ये आप जितना इंक्वायरी करेंगे, जितने पूछेंगे, आप उतने सॉलिड होंगे। और याद रखो 33% ये कुरान में आते हैं। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे बेटे, तुम पूछ रही थे कुछ? उर्दू में सर जरा थोड़ा बोलने का है इसमें। मुब्तदा बोले तो क्या है, जिस इस्म से शुरू होता उसको मुब्तदा कहते हैं, इसमें से और जो खबर होती है वो भी इस्म होता है। जी सर। खाली डेफिनेट। हाँ
हाँ जरा एक मिनट में उसको बोल लेता हूँ, फिर आप बात करेंगे। मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, मुब्तदा तेल है ना, खबर नकीरा होती है। हाँ सर। तेल चावल है ना। मुब्तदा रफा हालत में होता है और वैसे ही खबर भी रफा हालत में होती, दोनों सेम रहते हैं। जी सर। अच्छा, मुब्तदा वाहिद है तो खबर वाहिद रहती, मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर मुज़क्कर रहती, मुअन्नस का मुअन्नस, मुज़क्कर का मुअन्नस, मुज़क्कर। कौन बोल रहे हो? जी सर। हाँ, बंद हो गई। और भी पूछना है तो पूछिए, मुझे कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है, जी सर। क्योंकि ये पढ़ाने के बाद रोज का तरतीब ये रहेगी कि आधा घंटा जुमला इस्मिया पढ़ाया जाएगा और आधा घंटा इसके पहले जो पढ़ाए हैं फेल माजी का रिवीजन होगा जबरदस्त, सर ताकि ये 3 चीजों से आप परफेक्ट हो जाए। क्या क्या परफेक्ट हो जाना आपका? फेल माजी, फिर हमारे जुमला इस्मिया कंप्लीट आपको आना चाहिए इंशाअल्लाह। कुछ बोल रहे हैं कोई? जी कुछ सर, पूछना चाहते हैं? पूछना है? मारिफा ही रहेंगी, खबर नकीरा रहेंगे, ये नकीरा ही रहेंगी, मारिफा नहीं होंगी ना। हाँ, तो मैंने तो आपको उर्दू में बोला ना, खबर नकीरा होगी, और खबर नकीरा होने के चांस कितने हैं? 99%। कितने बोलो? 99%। 99%। हाँ, ये याद रखो। और मुब्तदा मारिफा होने का 100%, मुब्तदा 100% मारिफा ही होना चाहिए और खबर 99% नकीरा ही होगी। 1% जो रहेंगे हम बताएंगे आपको। ओके, जी सर। चलो तो चलो जरा सा समंदर में गोता लगाते और जरा दूर तक जाके माल लाते, मोती लाते। तो जरा गौर से देखिए, यहाँ पे हाजा है, और हाजा कौन है भाई? इसमें इशारा है और ये प्रोनाउन है और बजाती यानी पैदाइशी इन्हें मारिफा है और इन्हें मबनी है। बोलो, यहाँ लिख देता मैं, हाजा क्या क्या है? जुमला इशारा, वो क्या वो इशारा है? कुछ भी इशारा इशारा बाद में, पहले क्या है उन्हें? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव, इशारा बताने वाला प्रोनाउन है। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन जात कौन सी है? ठहरो, गड़बड़ी करेंगे। जात कौन सी है उसकी? प्रोनाउन की है। और प्रोनाउन को 2 रूल लागू होते हैं। क्या क्या रूल लागू होते हैं? प्रोनाउन हमेशा मारिफा होते हैं, मारिफा मबनी। हाँ, और इन्हें खुद के चेहरा बताते नहीं, बदलते नहीं। ये याद रखें तो सब चलता है। यस बॉस। अच्छा, हाँ, लपलेला है, लबाड़ है। अब ये हो गया हमारा मारिफा। बोलो जी सर, ये मारिफा है कि नहीं? मारिफा है। मारिफा। क्योंकि इन्हें कौन है? इसम है, प्रोनाउन है, और इन्हें रफा वगैरह कोई दिखाता नहीं है, इन्हें कोई रफा शफा दिखाता नहीं। अब यहां पर अगला जो आना कि मारिफा आना कि नकीरा आना? नकीरा आना, लेकिन अभी मारिफा है। हाँ, तो यहां पर इसके बीच का है इस गायब। गायब हो गया, इस निकाल देना है इसमें से। अब एक साथ पढ़ो, ये किताब, ये ये किताब। किताब। ये किताब। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? राइट राइट राइट। तो इस तरह से ये बन गया मुरक्कबे इशारी। बोलो, मुरक्कबे इशारी। कबे इशारी। राइट राइट। और ये नाकिस है क्योंकि इन्हें कंप्लीट मीनिंग नहीं बताता। फ्रेज है, फ्रेज। फ्रेज फ्रेज है, माशाअल्लाह, वाक प्रचार है, फ्रेज है, फ्रेज। मुरक्कबे नाकिस है, माशाअल्लाह। ये समझ गया? नाकिस। नाकिस। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये अगर किसी को नोट करना है, लिख लेना है तो लिख लो। इसकी कुंडली जो अभी तक मैंने सिखाया,
वो पूरे नाखिस नोट्स सही बोले तो नाखिस नाफिज बोल तो खराब खराब ताम बोले तो अच्छा ताम से जुमला बनता नाफिज से जुमला नहीं बनता अब रोज नहीं करने वाले हैं तो उनको कुछ समझने वाला नहीं है आप 3-4 दिन शादियों में घूम के आएंगे पूछेंगे नाफिज क्या है क्यों बोले खराब है आप रोज करेंगे तो समझेगा नहीं तो नहीं आपको समझेगा हाँ जरा देखिए भाई माजिद अब्दुल्ला सब भाई मेरे और मेरे बड़े बुजुर्ग सब जरा देखिए यहाँ पे जैद है आलिम रुको मैं जब तक बोलूंगा नहीं बड़बड़ नहीं करेंगे जैद ये पुकारने का रखा हुआ नाम है इसलिए मारिफा है और इल्म वाला है तो जैद मारिफा हो जाएगा इल्म वाला नकीरा हो जाएगा दोनों मिला के क्या बनेगा जैदुन आलिमुन बोलो जैदुन आलिमुन हाँ चलो अपना रूल बुक निकाल लो रूल बुक निकाल के चेक करो पहला उसूल है कि ये अगर मुक्तदा बनना है तो इन्हें डेफिनेट होना जरूरी है अच्छा बोलो बोला ये रखा हुआ नाम डेफिनेट रहता और रफा और देखो मैं जितना पूछे उतना बोलना सताना नहीं मेरे को तो ये पैदा हुआ था लड़का तो वलदुन था बाद में अल वलद हुआ झूले में रख के हिला के नाम रखे जैदुल पुकारने का नाम है तो जैदुल खास है राइट यस तो अपने को एक चीज मिल गई डेफिनेट मिल गई आलिमुन उसकी क्वालिटी है और क्वालिटी पे क्या दिख रहा अपने को तनवीन तनवीन कोई आलिम तो ये हमारा इंडेफिनेट हो गया तो अच्छा डेफिनेट का पीछा इंडेफिनेट कर रही है इसलिए इन्हें है जुमला इसमिया अच्छा अच्छा अब दूसरा रूल अप्लाई करके देखो जैद होना चाहिए रफा तो रफा है आलिम होना चाहिए रफा तो रफा है अब जैद है मर्द तो आलिमुन भी मर्द है जैद है वाहिद तो आलिमुन भी वाहिद है सिर्फ एक तफावत है डेफिनेट इंडेफिनेट मारिफा नकीरा इसलिए ये जुमला इसमें पास हो गया ठीक है भाई यस अब अगला देखो अब औरतें बोलेंगी सर हमारा भी जो बताओ ना तो यहां पे आई है फातिमा बेगम हाँ अब ये रखा हुआ नाम है कि छोकरी पट्टी कुछ नाम है नहीं रखा हुआ नाम मारिफा है मारिफा है Definite। और ये आलिमतुन है लड़की को तुन लगा देते तो ये नकीरा है नकीरा तो मारिफा का पीछा कर रहा नकीरा एक पास नंबर चेक करो इसका एराब चेक करो ये रफा पास ये मोनस इन्हें मोनस पास इन्हें वाहिद पास तो ये जुमला इसमें है समझा कि नहीं अच्छा चलो अब अगला जुमला अल वलदु ज़कियुन अब अल वलदु कैसा है डेफिनेट अपनी 4 चीजें लिखी है डेफिनेट इंडेफिनेट एराब नंबर जेंडर पहले वाला कौन है डेफिनेट है सेकंड वाला इंडेफिनेट है पहला रूल एराब ये डी आई का पास हो गया अब एराब इन्हें रफा ये पास वाहिद पास मर्द पास इसलिए ये कौन है ये जुमला अब ध्यान अल बैतु जमीलतुन अल बैतु ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है डेफिनेट है और ये तो ना इंडेफिनेट है डेफिनेट का पहला रूल पास आयरन चेक करो इन्हें वाहिद इन्हें मोनस ओके तो यहाँ पे बैठ नहीं है बिल्तु है क्या है अल बिल्तु जमीलुन ठीक है भाई सबको समझा
बिल्कुल जी सर हाँ जी सर ज्यादा टेंशन मत लो, इतना ही सीखना बढ़िया है। जरा देखो यहाँ पे पूरे रूल्स को एक जगह ला दिया मैंने। अच्छा, ये आप लिख सकते तो लिखो, नहीं तो मैं देता हूं आपको। देखो पहला क्या है, अल किताबु जदीदुन। अल किताबु कौन है भाई, मारिफा है, जदीदुन नकीरा है। ओके, ये नंबर दो, रफा अल किताबु रफा है, ये भी रफा है। ओके, अल किताबु मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर है, ये वाहिद है, ये वाहिद, इसलिए जुमला इसमें है, इसके बीच में है डालना पड़ता और पढ़ना पड़ता है इसको। अब पढ़ो बोला आप क्या मायने है। एक किताब, बोलो किताब है किताब है नया। किताब है नहीं। नहीं नया, नया। किताब है नया। नया नहीं, जो भी आप एडजस्ट करो। किताब आप है कलम नई। के बारे में देखिए, आप कलम देखिए, खालमा नहीं है, कलम। अल कलमु, अल कलम ये डेफिनेट है। मसरूर, ये इंडेफिनेट है। इंडिपेंडेंट है ये रफा है, ये रफा है। ये मुज़क्कर है, मेल है, ये भी मेल है। ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, इसलिए बोले जुमला इस्मिया है। जी हाजा बैतुन, ये पैदाइशी डेफिनेट है, ये इंडेफिनेट है। अब ये देखो यहाँ पे इस पे कोई दिख रहा का सिग्नल नहीं, इन्हें मबनी है, क्योंकि इन्हें किसकी जगह पे आया, मुब्तदा की जगह पे, इसलिए एराब से रफा है, इन्हें भी ये रफा है, तो ये भी जुमला इसमें है। ये है कोई घर। ओके, तो आज का पहला दिन है, डरो मत क्या। अच्छा जरा जोर से पढ़ो, माजिद साहब जी पढ़ो। जी एक मिनट। मैं पढ़ता हूँ, जुमला इस्मिया बनाते वक्त। हेलो, जुमला इस्मिया बनाते वक्त इन उसूलों का ख्याल रखना जरूरी है। हाँ, मुब्तदा आम तौर से पहले आता है, खबर उसके बाद आती है। हाँ, मुब्तदा और खबर हमेशा हालत रफा में होंगे। मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है। मुब्तदा और खबर जिन्स और अदद के बारे में बराबर होते हैं। मुब्तदा हमेशा इस्म होता है और खबर कभी इस्म और कभी इस्म और कभी पूरा जुमला भी हो सकती है। भी हो सकती है। हाँ, रिपीट कर रहा हाँ, मुब्तदा हाँ। हमेशा इस्म होता है, पर खबर कभी इस्म तो कभी पूरा जुमला हो सकती है। माशाअल्लाह। सब हो जाए नहीं उतने होते मुब्तदा अगर जुमला मुकस्सर हो तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस आ सकती है। हाँ, हमने बताए थे ब्रोकन प्लूरल है तो उस पर हुक्म चलता वाहिद मुअन्नस का, इतना ही याद, ये एडवांस है। ओके, नहीं हाँ, जरा पढ़ो भाई, पहला जुमला पढ़ो, मुझे कंफर्म करके बताओ ये जुमला है कि नहीं। अल वलदु जालिसुन जालिसुन जुमला द बॉय इज सिटिंग इस्मिया। अरे नहीं, मेरे को खाली पढ़ना नहीं बेटे, समझाओ नहीं क्या है। वलदु अल जालिसुन। वलदु सर ये मारिफा है, मारिफा है एक और ये जुमला इस्मिया है। एक सेकंड। चार लड़कियां अलग अलग पढ़ेंगी, एक लड़की पहले इसको समझाएंगी, दूसरी इसको समझाएंगी, तीसरी इसको समझाएंगी, चौथी इसको समझाएंगी। एक में पे कूदी मत मारो, चैन से पढ़ो। अच्छा, कौन समझा रहे बोलो, ये जुमला इस्मिया है कि नहीं साबित करना है अब। अल वलदु जालिसुन, अल वलदु मारिफा है और जालिसुन नकीरा है, ये पास हो गया।
माशाअल्लाह। अलवलदु रफा है और जालिसुन भी रफा है, तो ये भी इसमिया जुमले के लिए पास हो गया। माशाअल्लाह। दोनों भी वाहिद है, और मस्कुलाइन ही चाहिए, तो मुज़क्कर, ये पास हो माशाअल्लाह। गया। ये जुमला इसमिया है। इसको पढ़ते टाइम पर उर्दू वाले क्या करेंगे भाई? अल है वलदु के बाद में क्या लगाएंगे? है। है इंग्लिश में देखो, द बॉय इज, लड़का है, द बॉय तो अल वलद इज कैसा है? बैठा हुआ है। बैठा हुआ है। हाँ चलो, अब दूसरा कौन बोलेंगे? एक ही बोलेंगे, या मर्द हो या औरत हो, लेकिन समझा के बोलेंगे। ठीक है, मैं बोलूं? बोलो। वलदु हा काइमुन। हाइमुन। हाँ। अब ये मारिफा है, अल वलदु मारिफा है, और खाइमुन मतलब खाइमुन बोल तो वो है तो नकीरा में है। चलो, तो पहले क्या क्या गई? दोनों के नाम बोल दो। इन्हें है मारिफा, ये है लड़का, ये लड़का है खड़ा हुआ। रुको, इसकी टैग, इस पे टैग लगाएंगे ना। मुब्तदा खबर। माशाअल्लाह। हाँ चलो, आगे बताओ। ये मुब्तदा डेफिनेट है, खबर इनडेफिनेट है। वेरी गुड। अब इराब के हिसाब से मुब्तदा जो है वो क्या बोलते पेश वाला है, और खबर भी पेश रफा है, हालत में है, और नंबर के हिसाब से मुब्तदा भी एक है और खबर वो भी एक ही है, और सिंगुलर बोलो, वाहिद है बोलो। वाहिद है, और ये भी मौना से वो क्या मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। इसलिए पास हो गए, चारों चीजों के पास हो गया। इसलिए जुमला इसमें इसको ऐसा पढ़ेंगे, लड़का है खड़ा हुआ। मैं इजाजत लेता, ट्रेन आ रही मेरी। हाँ जाओ भाई। चलो, अब कौन कर रहे भाई? लड़की करो कोई। जी सर। अल वलदु मुजतहिदुन। अल वलदु मारिफा है और मुब्तदा है, और मुजतहिदुन नकीरा है और वो खबर है, तो ये जुमले तो आगे खबर आयरा बता। एराब की हालत उसमें रफा है, और मुजतहिदुन में भी रफा है, तो भी ये पास हो गया। और उसके बाद ये मुज़क्कर है, अलवलदु मुजतहिदुन भी मुज़क्कर है, तो भी ये पास हो गया जुमले इस्मिया के लिए। और ये वाहिद है अलवलदु, और मुजतहिदुन भी वाहिद है। तर्जुमा करो। अलवलदु मुजतहिदुन, एक लड़का है, एक नहीं, लड़का है मेहनत कश या मेहनती। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अब जो सबसे कमजोर बच्ची है या बच्चा है या लड़का है या बड़े बुजुर्ग है, उन्हों कोशिश करो ताकि उन्हों भी ताकतवर हो जाए इंशाअल्लाह। पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। अल वलदु हसनुन। हाँ। अल वलदु मुब्तदा हसनुन खबर। हाँ, तो इसकी हालत अल वलदु हालत रफा में है, पेश है, पेशी हालत। हसनुन भी मरफू है, पेशी हालत। माशाअल्लाह। ये नकीरा है कि मारिफा है? अल लगा है तो मारिफा है वो, और हसनुन नकेरा है क्योंकि तनवीन है। अच्छा, बाकी आदत में देखो, वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वाहिद है, दोनों भी वाहिद है। माशाअल्लाह। दोनों में से जिससे को मर्द है कि औरत है? पहले काम कंप्लीट कर बेटे। ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? दोनों मुज़क्कर है। हाँ, इसलिए ये जुमला इस्मिया बन गया। अब इसका तर्जुमा करो, अरबी में पढ़ो, तर्जुमा उर्दू में अच्छा करो। अल वलदु हसनुन। हाँ। अल वलदु लड़का हसीन है। तुम बेवकूफ हो। तुम बोलो, मैं तुमको दो, तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा था यहाँ पे है लिखने का, तुम अपनी चाल छोड़ते नहीं। लड़का है अच्छा, लड़का है अच्छा। अब समझे? जिद करोगे, जिद करने वाला कभी नहीं पढ़ता। हाँ,
लड़का है अच्छा। अब समझ में आया? बोलो हाँ मैं हूँ समझ गई जिंदगी, सर। मैं हूँ थैंक यू सर, जिंदगी। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब एक 5 मिनट ले लीजिए, जो बोलना। कल इसको वापस लेंगे, अपना पूरा एक हफ्ता भर चलने वाला है। इसके अंदर तमाम मुरक्कबात पिरोएंगे और बहुत मजे करेंगे। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल। आपकी तबीयत कैसी सर? आपकी तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी तबीयत। अल्लाह कहाँ और गया सेहत था दे सर आपको। को? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन आवाज? बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा? जी सर। जी सर। जी सर। अल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाहु गफूरुर रहीम। आज की क्लास में जो हमारी शुरुआत हुई, जैसा कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले कलिमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म नाउन, फेल वर्ब और हर्फ यानी के पार्टिकल्स। ये 3 है कलिमे की किस्में। जब ये तीनों अलग अलग आते, अलहदा आते, तो क्या कहेंगे? मुफरद। और जब ये कोई भी आपस में जब मिल के आ जाते, 2 अल्फाज आपस में जब मिल के आएंगे या एक से ज्यादा जुमले आ जाएंगे, तो उसको कहेंगे मुरक्कब। और मुरक्कब की 2 किस्में हैं, हमने देखे। पहला है मुरक्कब ताम और दूसरा है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम का दूसरा नाम क्या है? जुमला। जुमला। मुरक्कब नाकिस की किस्में हमने पढ़े 4। वो नाम याद है आप लोगों को? ये नाम याद रखना है रोजाना। मुरक्कब नाकिस के नाम याद रखना है। मुरक्कब नाकिस में सबसे पहला है मुरक्कब इजाफी। उसके बाद है मुरक्कब जारी। उसके बाद है मुरक्कब इशारी। और फिर है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी। अब ये ज्यादा तफसील बताने की जरूरत नहीं है कि मुरक्कब इजाफी का काम क्या है, मुरक्कब इजाफी का किरदार क्या है। मालिक और मिल्कियत का रिश्ता बताना, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब जारी हरफ जर के साथ आता, फी, अला, मिन, ली, अन और काफ जबर का, ये जैसे हरफ जर है उनके साथ हरफ जर के साथ आता, उसको बोलेंगे मुरक्कब जारी। मुरक्कब इशारी इसमें इशारा के साथ आता, यानी कि इशारा करके बताया जाता, तो इसमें इशारा के साथ जो लफ्ज आता उसको बोलेंगे मुरक्कब इशारी। मुरक्कब तौसीफी क्वालिटीज बयान करने के लिए, सिफात बयान करने के लिए इस्तेमाल होता मुरक्कब तौसीफी। तो ये 4 है मुरक्कब नाकिस की किस्में, जिसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमको मालूमात है।
اب جب ہم چلیں گے مرکب تام کی طرف یعنی کہ جملے کی طرف، جملے کی بھی دو قسمیں ہیں، وہ کون سی ہے؟ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ ہاں، جملہ اسمیہ جملے فعلیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس کی شروعات اسم سے ہوتی، ناؤن سے ہوتی، اس کو انگلش میں بولیں گے نومینل سینٹینس۔ اور جملہ فعلیہ ایسا جملہ جس کی شروعات فعل سے ہوتی، ورب سے ہوتی، انگلش میں اس کو بولیں گے وربل سینٹینس۔ تو جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے، جملہ اسمیہ کے اندر، جملہ اسمیہ میں 3 اہم جز ہوتے، 3 پارٹس ہوتے، 3 قسمیں ہوتی اس کے اندر الفاظ کی۔ سب سے پہلا رہتا مبتدا، یہ نام ہم شروعات سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دوسرا خبر، اور تیسرا ہے متعلق خبر۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس کی شروعات اسم سے ہوتی، سب سے پہلا۔ اور دوسرا یہ یاد رکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ میں 3 اہم جز ہوتے، مبتدا خبر خبر متعلق خبر۔ اب یہ متعلق خبر بولے تو نام ہارڈ لگ رہا، لیکن یہ مشکل نہیں ہے۔ متعلق خبر کو آسانی اگر ہم بولیں گے تو خبر کے متعلق، متعلق کے معنی ہے بارے میں، متعلق خبر کے معنی ہے خبر کے بارے میں۔ تو مین اہم جو ہے وہ ہے مبتدا اور دوسرا ہے خبر۔ تیسرا جو مزید معلومات خبر کے بارے میں دی جاتی تو وہ ہوتا متعلق خبر، یعنی کہ خبر کے بارے میں مزید معلومات۔ یہ 3 اہم جز ہے جملہ اسمیہ کے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی آپ نے یاد کر لیے، یہ سمجھ میں آ گیا تو کافی ہے۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس کی شروعات اسم سے ہوتی اور اس کے اندر 3 اہم جز ہوتے، مبتدا، خبر اور متعلق خبر۔ اب جملہ اسمیہ کی طرف جب آگے بڑھیں گے تو جملے بھی بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسا ہم نے ایک فعل پڑھے کتبہ، یہ عربی زبان میں 3 حرف والا فعل ہے، تینوں کے اوپر زبر ہے، لیکن ہماری زبان میں جب آتا وہ تو پورا کا پورا ایک سینٹینس بن جاتا۔ اس نے لکھا تو پورا ایک جملہ بن گیا ہمارے زبان کے اندر۔ تو اسی طریقے سے عربی زبان میں ایک لفظی جملہ بھی ہوتا، 2 لفظ والا جملہ بھی ہوتا، اور 2 سے زیادہ لفظوں والا جملہ بھی ہوتا۔ تو جملہ اسمیہ میں ایسا جملہ جس کے اندر صرف 2 لفظ ہو، جملہ اسمیہ میں ایسا جملہ جس کے اندر صرف 2 لفظ ہو، یعنی کہ 2 الفاظ ہو، اس میں اصول یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہونا اور خبر 99% نکیرہ ہونا۔ ایک لفظی جملے میں، جملہ اسمیہ میں ایک لفظی یعنی کہ سنگل ورڈ والا، صرف اس کے اندر 2 ہی الفاظ ہے، تو مبتدا معرفہ ہونا اور خبر 99% نکیرہ ہونا۔ بورڈ پہ لکھا ہوا جو الفاظ ہے اللہ غفور الرحیم، اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ جملہ ہے یا نہیں ہے، یا جملہ ہے تو پھر کون سا جملہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہر ایک لفظ کو الگ الگ کرنا ہے۔ شروعات ہماری کہاں سے ہونا کہ ہر لفظ کو ہم الگ کرنا ہے اور اس کی پہچان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے اللہ، تو اللہ اسم ہے، یہ جملہ بھی اسمیہ ہے، ہاں، اور ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ کے اعتبار سے معرفہ ہے، اس کے بعد اعرابی اعتبار سے رفع ہے، واحد ہے، اور مذکر ہے۔ تو یہ پہلا اسم آ گیا، اس کا DING آ گیا ہمارے پاس۔ دوسرا اسم ہے غفورن۔ اب غفورن کا DING نکالنا ہے
मारिफा है या नकीरा है? नकीरा नकीरा है। एराब ये हालत क्या है? वाहिद ये रफा है रफा है। अदद क्या है? वाहिद वाहिद है। मुज़क्कर मुज़क्कर है। उसके बाद है रहीमुन। अब रहीमुन भी इस्म है, वो इसम है नकीरा है, नकीरा है रफा है, वाहिद मुज़क्कर वाहिद है, मुज़क्कर है। ठीक है, तो तीनों इस्म को, तीनों अल्फाज को हमने अलग अलग कर दिया और तीनों भी इस्म मिल गए। अब इस्म मिल गए तो सबसे पहला वाला जो हमको मिला वो मारिफा मिला, और उसके बाद वाले जो दो मिले वो नकीरा मिले। तो नकीरा, मारिफा का पीछा जब नकीरा करता तो जुमला इस्मिया बन जाता। अनाया अल्लाहु शुरुआत में इस्म है तो ये जुमला हो गया जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया के तीन अहम जुज है, वो है मुब्तदा, खबर और मुताल्लिक़े खबर। मुताल्लिक़े खबर जुमले में नहीं भी आ सकता, लेकिन ये दो आना बहुत जरूरी है, मुब्तदा और खबर। अब इनकी पहचान है, मुब्तदा और खबर को पहचानना है तो उसकी पहचान सिर्फ ये है कि एक लफ्ज वाला जुमला, जुमला इस्मिया में मुब्तदा मारिफा होता और खबर 99% नकीरा होता। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो अल्लाहु है पहला लफ्ज और वो है मारिफा, और दूसरा है गफूरुन तो वो है नकीरा। तो अल्लाहु गफूरुन के मायने क्या हो जाते? अल्लाह है अल्लाह है करने वाला, या अल्लाह है गफूर, अल्लाह है माफ करने वाला। ये जुमला इस्मिया आ गया। तो जुमला इस्मिया में मुब्तदा के बाद हमेशा क्या आता है? तो अल्लाह है माफ करने वाला। फिर उसके बाद है रहीमुन। अब रहीमुन के मायने भी है रहम करने वाला। यहाँ पे अल्लाह ताला के बारे में दो चीजें बयान की जा रही है, पहला है गफूरुन और दूसरा है रहीमुन। क्योंकि अल्लाह मारिफा है और रहीमुन नकीरा है, तो ये भी क्या हो गया? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में अल्लाहु हो गया मुब्तदा और गफूरुन और रहीमुन हो गया खबर। तो ये कंप्लीट हो गया जुमला इस्मिया। अल्लाह है माफ करने वाला, अल्लाह है रहम करने वाला। इसका पढ़ने का तरीका है अल्लाहु गफूरुर रहीम। तो आज की क्लास में जुमला इस्मिया यानी कि ऐसा जुमला जिसकी शुरुआत इस्म से होती उसको बोलेंगे जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया के अंदर तीन अहम जुज होते, पहला है मुब्तदा, दूसरा है खबर और तीसरा है मुताल्लिक़े खबर। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जुमला इस्मिया एक लफ्जी यानी कि सिर्फ दो लफ्ज वाला जुमला है, तो उसमें मुब्तदा हमेशा मारिफा होना और खबर 99% नकीरा होना। आज की क्लास में, आज की क्लास का खुलासा यही है हमारा आज का सबक। कोई सवाल है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर मुतालिके खबर तो हरफे जर के साथ है तो बोलना है क्या सर, मुतालिके खबर बोल के? हाँ, मुतालिक खबर यानी कि खबर के बारे में मजीद मालूमात दी जा रही। जैसा सर ने शुरुआत में कुछ मिसालें देके बताए थे कि मजहरुद्दीन है एक मुदर्रिस, मजहरुद्दीन है क्लास में, तो ये मजीद मालूमात दी जा रही। एक तो वजूद बताया गया पहले कि मुदर्रिस है, अब उसके बाद जो बताया गया कहां है, तो जवाब आया क्लास में है। अब क्लास में है तो ये मजीद मालूमात होगी, मुदर्रिस है और क्लास में है, तो ये जो मजीद मालूमात जो आ रही वो आती वो कहलाती मुताल्लिक़ है खबर। और वो किसी के भी साथ आ सकती, हरफे जर के साथ खास तौर पे वो इस्तेमाल होती। जी और कोई सवाल? नहीं सर।
چلیے آج یہاں پہ رکیں گے، کل انشاءاللہ اور آگے کنٹینیو کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام جزاک اللہ وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ. السلام علیکم.